तो सेकेंड लेक्चर है आज और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हम देख रहे हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हम जान चुके हैं कोई भी रिएक्शन यदि होगी, ठीक है, केमिकल चेंजेस आएंगे, कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, ओके। एंड व्हाट इज द रूल दैट एट लेफ्ट हैंड साइड द रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड and at the right hand side the products are placed, okay. What is the reactant? The starting material. And what is the product? Which is the formed by the reaction between the two or more compounds, okay. If reaction is not balanced, then it is called as skeletal chemical reaction, okay. We will know about the how to balance the reaction, but if reaction is not balanced then it is skeletal chemical reaction. Like for the example, when magnesium wire is burnt in air, so what happens? The magnesium reacts with oxygen gas to form oxide MgO. Mg is in a solid form, oxygen is a gas form, and MgO is in a solid form. Okay, in a bracket I can write it as. Now in this compound, in this is called as a chemical equation. Chemical equation. When magnesium reacts with the oxygen gas in the air and forms oxide, that is called as chemical reaction. But when we are going to represent it in the equation form, this is called as a chemical equation. So in the left hand side these are the reactants. In the left hand side these are the reactants, and in the right hand side this is the product. So we can see that here two oxygen atoms are there and here only one oxygen atom is there. So this equation is not balanced, and if equation is not balanced it will be called as skeletal reaction or equation we can call. When we are writing chemical equation we can write their physical state in bracket. Like in the solid we can write small s, liquid small l, and for the gas small v. So it would be better if we write physical state of compound along with the compound, so that we can easily understand that this compound is a solid form on this. For the example, water is found in both in all forms, solid, liquid and gas. So we must know ki in which form the water is taken. So we have to mention the physical state clearly. So when we are writing balanced chemical reaction, okay, so balanced chemical equation follow mass conservation law. What is mass conservation law? In a simpler word, mass cannot be created or destroyed. किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना मास खत्म होगा उतना ही मास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 100% लागू होता है। कुछ रिएक्शंस होती है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन एंड फ्यूजन, उनमें ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है ना। जिसको हम बोले सिंपलर वर्ड में कि एटम बम, तो एटम बम में जो रिएक्शन होगी वहाँ रिएक्शन फॉलो करती है E = mc², तो वहाँ मास कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन जो बाकी रिएक्शंस हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के अलावा, वहाँ पे हमें कहते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, रिएक्टेंट साइड पर जितना मास टोटल कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट साइड पे उतना ही मास टोटल फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और MgO बनता है, अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम वाज कंज्यूम्ड एज 24 ग्राम, ऑक्सीजन वाज कंज्यूम्ड एज 16 ग्राम, और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ MgO फॉर्म्ड। अब यहाँ वैसे रिएक्शन बैलेंस करनी है हमें, उसके बाद हमें और भी तरीके यूज करने हैं, लेकिन इन वेरी सिंपलर वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन दैट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज कंज्यूम्ड, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स टोटल 40 ग्राम वाज कंज्यूम्ड. सो द प्रोडक्ट इज ओनली MgO. So we can say that 24 plus 16 total as a totality 40 gram was formed. So it implies law of conservation of mass कि total mass consumed will be total mass formed in the product. Okay. So if we are applying the mass is conserved,
So we can say that number of atoms reacted in all reactant is equal to number of atoms in product form. इसका मतलब ये है कि जितने भी एटम हमारे इधर खत्म हो गए रिएक्टेंट्स में, वो सब रीअरेंज होकर प्रोडक्ट में जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि एटम खत्म होने वाला है. जो चीज हम इसके लिए बोल रहे हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो जो चीज हम मास के लिए बोल रहे हैं वो एटम के बारे में बोलेंगे. एटम आपस में क्या होता है, रीअरेंज होते हैं. यानी कि रिएक्टेंट के एटम आपस में टकराए, ठीक है, और उन्होंने जो है प्रोडक्ट बनाए, तो वो एटम नहीं खत्म होगा. ठीक है, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बैलेंसिंग के दौरान हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हम हर एलिमेंट को देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट पार्टिसिपेट एट रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट के अंदर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड. इसका मतलब किसी एक एलिमेंट को पकड़ लें, जितने एटम इधर खत्म हुए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं, उतने ही उस एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए. यही सबसे मेन चीज है बैलेंसिंग का, जो हम देखेंगे. अब देखिए, एक रिएक्शन है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये तो एक्चुअली हमने रिएक्टेंट डाले, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड एंड द प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व्ड एज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं, दिस इज इन वर्ड फॉर्म. ठीक है ना, हम अभी फार्मूला नहीं लिखेंगे किसी का. अगर हम फार्मूला लिखने लग जाएंगे इनका, तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन फॉर्म. सो इन इक्वेशन फॉर्म वी कैन सी दैट जिंक इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, zinc sulfate is ZnSO4 and hydrogen gas is H2. Now we will try to balance the reaction. So for the balancing we have to check the number of atoms. Zinc at left hand side means reactant side, left hand side and product side RHS. तो जिंक यहाँ पर एक है, इस साइड भी 1 है, इसका मतलब जिंक बैलेंस है. हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट 2 बैलेंस्ड है. अब आ जाए सल्फर पर 1, सल्फर इस साइड भी 1, तो सल्फर 1 बैलेंस्ड है. इसके बाद आता है ऑक्सीजन पे 4, इस साइड ऑक्सीजन 4, मीन्स ऑक्सीजन एटम इज 4. इफ ईच एटम इज इक्वल एट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो वी कैन कॉल दैट दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन. बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ विल ट्राई द रिएक्शन विच इज नॉट बैलेंस्ड. So we can check by writing the number of atoms. Like iron is 1. Here iron is 3. Okay. Here hydrogen is 2. Here hydrogen is balanced 2. Oxygen is 1. Oxygen is 4. This means this reaction is not balanced. Now the procedure what we have to follow for balancing the reaction. We have to find the coefficient of each reactant and each product. Okay. So suppose I first check iron atom. Here iron atom is 1 and in the product side iron are 3. So if I multiply this iron as 3 and this iron by multiplying by 1, so iron atoms will be balanced. Now you can check 3 iron atoms and here are 3 iron atoms. So first procedure, if we have balanced the iron atom, I am writing again it 3Fe plus H2O gives यहाँ पे Fe3O4 plus here H2 and the coefficient before Fe3O4 is 1. Now I will check the oxygen atoms. So oxygen atoms I can say here 1 and here oxygen atoms are 4. So if I multiply H2O by 4 coefficient, the oxygen atoms will be balanced. So this was the first step when I have balanced the iron atom. In the second step, I am balancing oxygen atom. Okay. So oxygen was 4, oxygen was 1. So I have multiplied this by 4. So oxygen atom is now balanced. Now I come to third step, 3Fe plus 4H2O giving Fe3O4 plus here hydrogen gas. Now the last term is hydrogen element. I can check the hydrogen atom 4 into 2 is 8 atoms.
and here hydrogen atom is 2. So if I want to equate hydrogen atom at both sides, so here 8 atom, here 2 atom, so I am multiplying hydrogen by 4. What will happen? In the last step, I am balancing hydrogen element. Balancing hydrogen element. So the last equation is 3Fe. So the coefficient 3Fe plus 4H2O giving 1 Fe3O4 plus 4H2. Now I can check that each atom is balanced. 3 iron, here 3 iron, 4 into 2, 8 hydrogen atom, 8 hydrogen atom, oxygen 4 into 1, and here oxygen is equal to 4. So this is the method to balance the reaction. We have to check each and every element whether the atoms of reactant and product side are equal or not. If they are not equal, then the both side is multiplied by some factor so that atoms of that element are equalized at both sides. This is basically heat and trial method, and you have to again do. For practicing many reactions, we will automatically understand how to balance the reaction. Next example, we are taking KClO3 giving KCl plus O2. This is potassium chlorate, and this is potassium chloride, and this one is oxygen gas. So we will try to balance the reaction. So what I suggest that when we are trying to balance the reaction, we will write number of atoms of each element, 1, 1, 3, 1, 1, oxygen 2. Now you can check that the potassium at both sides are equal, chlorine at both sides are equal, so we don't need to balance the chlorine atoms. The only remaining element is oxygen, and oxygen here are 3 and oxygen here are 2. So I can write the 3 and 2. So for balancing, what should be done? 3 is giving 2 means I multiplied this by 2 factor and multiplied by 3 factor. So both numbers are equalized. So what will I do? I will multiply this by 2 and this multiplied by 3. So I am writing it again. 2 KClO3 giving KCl plus 3O2. So what I tried, I will balance oxygen atoms at both sides. Now potassium here is 2 and chlorine is 2. If you multiply by 2 factor, then this is balanced. Or the alternatively, what I can think now, that in KClO3, alternatively what I can think, KClO3 दे रहा है KCl plus O2. अब आप यहाँ 3 है, बाकी तो बैलेंस था इसे, यहाँ 2 है. अगर मैं 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि KClO3 गिविंग KCl plus 3/2 O2. और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो 2 KClO3 गिविंग 2 KCl plus 3 O2. ये एक तरीका हो जाएगा बैलेंसिंग. अगला एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मैं एक एसिड बेस ले रहा हूं LOH3 प्लस H2SO4 गिविंग Al2SO4 होल 3, ठीक है, प्लस H2. अब देखिए इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे कि इस साइड एल्यूमिनियम जो है, सबसे पहले मैं देखूं 2, इस साइड एल्यूमिनियम है 1, तो 1 इस साइड और 2 उस साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2AlOH3 प्लस यहां मैं इस पे छोड़ता हूं H2SO4 गिविंग Al2SO4 होल 3 प्लस यहां इस पे छोड़ता हूं H2. अभी ये रिमेनिंग है. अब आप यहां देखिए कि सल्फर यहां पर 1 है, ठीक है, सल्फर यहां पे जो है 3 है. 3 कैसे, बाहर भी 3 लगा हुआ है, ये 3 है. तो अगर मुझे सल्फर बराबर करना है, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या चीज बैलेंस होगी? सल्फर बैलेंस हो गया अभी यहाँ पर.
तो ऑक्सीजन देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम। ऑक्सीजन जो है वो इस साइड, सल्फेट आयन तो बैलेंस हो गया, 3 इस साइड है, 3 ही यहाँ पर है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर में इस साइड में टोटल हाइड्रोजन काउंट करता हूँ। हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ OH3 है तो 3 हाइड्रोजन ये, और आगे कोफिशिएंट 2 है तो 2 इंटू 3 हाइड्रोजन 6 यहाँ हुए, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन यहाँ हुए, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे हुए 12। इधर हाइड्रोजन है 2, तो इस H2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। इसका मतलब बैलेंस रिएक्शन क्या हो गई, 2AlOH3 प्लस 3H2SO4। अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लें इसको कि सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। किसी भी एक एटम को पकड़ो, अब देखो 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, सल्फर यहाँ 3 है, 3 बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ऑक्सीजन एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 18 ऑक्सीजन इस साइड और 12 इधर और प्लस 6 18 ही हो गया। तो ये एक तरह से हीट एंड ट्रायल का मेथड है जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के चेक करने हैं, इस तरीके से बैलेंसिंग चलेगी, ठीक है। तो ये अगर आप क्लियर कट इसको एनालाइज कर लोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एल्यूमिनियम यहाँ 1 था, यहाँ ऑक्सीजन 3 था, यहाँ हाइड्रोजन 3 था, ये 2, ये 1, ये 4, इधर एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो जब बैलेंसिंग की बारी आई तो मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस सबसे पहले किया, 2 आगे लगा दिया। सल्फर की बारी आई, यहाँ 1 था, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 सबसे पहले लगा दिया मैंने। अब ये यहाँ से इसके साथ ये बैलेंस हो गया। अब वाटर बैलेंस करने के लिए मैं सिर्फ हाइड्रोजन देख रहा हूँ कि 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 है और 2 है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन यहाँ, 12 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाइड बाई 6। ये बैलेंसिंग का तरीका है। तो जैसा कि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, पर रिएक्शन में एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस फिजिकल स्टेट में है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी कहा था कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, तो अगर मैं S लिखता हूँ इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, G लिखता हूँ मतलब ये गैस स्टेट में है, सॉलिड लिखता हूँ तो सॉलिड S सॉलिड, G फॉर गैस। अब वाटर यहाँ मैंने लिखा गैस, इसका मतलब वाटर इज अ फॉर्म ऑफ स्टीम। अगर मैं वाटर के साथ S लिख देता सॉलिड तो वो होता बर्फ, आइस। अगर मैं लिक्विड रख देता तो लिक्विड वाटर होता, और अगर मैं गैस लिख देता हूँ वाटर के साथ तो स्टीम फॉर्म में। तो हमें रिएक्शन देखकर ये भी क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए कि किस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कहूँ कि और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑल्सो कैन बी रिटर्न विद द रिएक्शन। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अमोनिया फॉर्मेशन है, 2 नाइट्रोजन इस साइड। अब बैलेंसिंग मैंने बता दिया आपको, 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 2 से, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करूँ 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, तो बैलेंस है। अब जो आयरन मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया एरो के ऊपर, इट मीन्स इट इज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जिनोन और हाइड्रोजन, दे आर फॉर्मिंग जिनोन H2। नाउ द रिक्वायर्ड कंडीशन इज प्रेशर शुड बी 6 atm and temperature should be 400 degrees centigrade. So the example is that कि we can write the catalyst, pressure or temperature along with the reaction so that we get a clear cut idea कि how reaction is proceeding. So what are the steps? First we have to write the formula of each reactant and product. Second step we have to balance the reaction. During balancing we have to check whether number of atoms of each element at reactant and product side are equal or not. Third step we can write physical state of the reactant and product, and fourth step, we catalyst is there, we should write the catalyst on the top of the arrow, okay, and pressure and temperature can also be mentioned with the reaction so that it will be the complete information about the chemical reaction. बस ये